Good morning to all. Good morning, sir. Sorry for yesterday's disturbance. As I was teaching uh, values and eigenvectors, so till now maximum problems we solved. So for today, the most of the problems you have to solve. Most of the problems you have to solve. Okay. Should we start now? Yes. Please join earlier. People come late. Sir, should we start? This one we did, this also we did. I was discussing this one. The matrix -2, -4, 4 minus 2 has options: real eigenvalues and eigenvectors, real eigenvalues but complex eigenvectors, complex eigenvalues but real eigenvectors, and complex eigenvalues and eigenvectors. Now solve this and gets the eigenvalues and tell me whether they are real or complex ones. Whether they are real or complex ones. No need of finding eigenvectors, just to find eigenvalues and tell me. -2 minus lambda minus 4, 4 minus 2 minus lambda, this determinant equal to 0. You take this determinant equal to 0 and tell me what is the answer. Tell me what is the answer. And write the correct option. Write the correct option. Yes, what are the eigenvalues? You write in the chat box. Next, I will explain the things. Just you have to tell what is the eigenvalue.
Yes, answer please. -2 -2, or Theta is saying -2 -2. Is it right? -2 -2 means these are real numbers. These are not complex one. Means your one of the eigenvalues is real eigenvalues it is. Yes, others. मालूम हो रहा ना आपको मैं क्या पूछ रहा हूँ? आप प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में माइनस, आप अभी तक अगर से इजन वैल्यूज नहीं निकालना सीखे तो यू हैवंट लर्नड एनीथिंग. -2 minus lambda -4, 4 -2 minus lambda, this determinant equal to 0 you make, and then you do the rest of the things. No answers. What is the problem? I don't know whether I solved this or not. I haven't solved. Please go through this. Whatever the problems I am leaving, all these are I am giving in the form of slides to you. Please, each and every problem should be solved. Now I will leave this as homework. Please do it. Find the eigenvalues. Check whether they are real ones or complex ones. One of the girl has found, and -2 -2 she said the answer, and these are real eigenvalues. And then you have to check for eigenvectors. But I don't think this is the right answer. I don't think this is the right answer. Again, Sonali Shinde, -2 -2, same. Okay. Check it once again. Even I can also be wrong. Check it, please. Now, coming to the next question, that is 37th question. So till now, 36 problem we have solved. Now, you see here, consider a matrix A is equal to U into V to the power T. V to the power T means transpose of V. Listen the problem very carefully here. Consider a matrix A equal to U V to the power T, where V to the power T is nothing but transpose of V. Transpose of V in the sense you have to convert rows into columns and columns into rows. Now you see here, two matrices has been given to you. U is equal to 192. U is equal to 192, whereas V is equal to 1 1. These are the matrices given to you, and you have to form a matrix U such that U A is equal to U into V to the power 3. This is nothing but it is just to make waste your time, all these things. So maximum calculations you have to move. That is the main intention of examiner here. Note that Vt denotes the transpose of V. The largest eigenvalue of A is what is. So only the main intention of examiner here is to find the eigenvalue, and out of these two eigenvalues, you have to find the largest eigenvalue. Before that, U is given to you, V is given to you. This is U, this is V. Now form the V transpose. V transpose means this is the column, convert this into rows. So this is going to be 1 1. So now A is equal to U into V transpose. A is 192, whereas V transpose is 1 1. V transpose is 1 1. Now you multiply this. Now you multiply this 1 into 1, then 1 into 1, 2 into 1, and 2 into 1, like this. Multiply. You know the multiplication of matrix. So 1 into 1, 1, 1 into 1, 1, 2 into 1, 2, 2 into 1, 2. So this is your A matrix. He could have given directly the A as this much and find the eigenvalues, but he wants your time to be wasted. Each question has to be solved in 2.7 minutes. That's why he has given you all these homeworks. You have to do it fast. So once you get U into V transpose, that is the matrix A 1 1 2 2. So A minus lambda I equal to 0. We are going to find characteristic roots now. So 1 minus lambda, 1, 2, 2 minus lambda. This determinant is equal to 0. 1 minus lambda into 2 minus lambda. 1 into 2 minus 2 equal to 0. I solve this. 1 into 2 is 2. 1 into minus lambda is minus lambda. Minus lambda into 2 is minus 2 lambda. Minus lambda into lambda is plus lambda square. This minus 2. And if you simplify all these things, I think this is minus 2 lambda minus lambda 3 lambda, 2 plus or minus 2 get cancels. So lambda square minus 3 lambda equal to 0. Lambda you take common,
that is lambda minus 3 equal to 0. So lambda equal to 0 and lambda is equal to 3. Two eigenvalues you got for A, and out of these two, largest is 3, and you have to, fill in the blank 3. Remember, this carries 2 marks. There is no multiple choice questions. You have to find the right answers. If you do the problem right, then only you get the right one here. Got it? So now we shall go for next problem. If you have any doubts, please ask it. Go through it, please, once again. Please don't be late. Go through this problem once again. If you want to take down, you can take down. Easy problem, but little bit, lengthy this is. And the largest eigenvalue is 3. You have to write here 3. You have to write here 3. Right, sir. Right in the sense RIGST, right, or WRIT, right? Anjum, I'm not following you. Now we shall go for next question. So two PPTs I have given to you. Now this is the next question. Again, little bit, please without seeing, try to solve this one question. That is important. Now, you see here, consider the matrix, take down on the notebook. Consider the matrix A equal to 50, 70, 70, 80. Take down the question. Consider the matrix A equal to 50, 70, 70, 80, whose eigenvectors corresponding to eigenvalues lambda 1 and lambda 2 are x1 is this much, that is 70, lambda 1 minus 50, x2, lambda 2 minus 80, 70, respectively. The value of x1 transpose into x2 is, see here, first of all, in the GATE exam, solution is not more important. First of all, you have to follow the question rightly. See, sometimes you need 2 minutes just for understanding the question, and understanding is very important. Once you understand, then only you can solve this. Now you see here, a matrix is given 50, 70, 70 and 80. This is the matrix. Its eigenvalues are lambda 1 and lambda 2. Its eigenvalues are, we don't know the values of lambda 1 and lambda 2. Just it is given that lambda 1 and lambda 2. x1 is given and x2 is given. These two are its eigenvectors. x1 is corresponding to lambda 1, x2 is corresponding to lambda 2. एक बार और क्वेश्चन समझाता हूं. देखिए, मैट्रिक्स ए है, क्वेश्चन अच्छी तरह समझो. ए एक मैट्रिक्स है, उसके दो ईजन वैल्यूज है लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2. लैम्डा 1 आपका ईजन वैल्यू है पहला, लैम्डा 2 है दूसरा, और उसके दो ईजन वेक्टर्स भी दिया आपको, लेकिन वो पूरा नहीं दिया इन टर्म्स ऑफ लैम्डा दिया. x1 is 70, लैम्डा 1 minus 50, x2 is लैम्डा 2 minus 80, 70. आपको निकालना है वैल्यू ऑफ x1 ट्रांसपोज इनटू x2 इज हाउ मच. देखिए, यहां पर x1 इंटू x2 मल्टीप्लाई करने के लिए आपको x1 x2 होना. x1 x2 यू आर हैविंग, बट विद द अननोन लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के वैल्यूज निकालना है. इट मींस दैट गिवन क्वेश्चंस के ईजन वैल्यूज निकालना है आपको. गिवन क्वेश्चंस के मतलब वैल्यू ऑफ ये निकालना है आपको. तो x1 देखिए इतना है, इसका ट्रांसपोज ये होगा 70 लैम्डा माइनस 50, और x2 है आपका लैम्डा 2, ये x2 वैल्यू है आपका. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 70 into lambda 2 minus 80 plus lambda 1 minus 50 minus minus plus, he has taken lambda 1 minus 50 into 70 equal to 0. अगर से आप चाहे तो इसको पूरा सिंप्लीफाई कर सकते, तो वो बहुत लेंथी होता. तो देखिए यहाँ पर कितना एक शॉर्टकट मेथड ही हैज फाउंड. 70 into lambda, 70 into 80, lambda into 70, 80 into 70 he has taken. I think 50 into 70 he has taken. Now what he did is, he has taken 70 as common for lambda 1 and lambda 2. When he has taken 70 as
common here. The common thing in the bracket is lambda 1 plus lambda 2 minus for the second and fourth term. The common is again 70. It is 80 plus 50. So now here lambda 1 lambda 2, as lambda 1 and lambda 2 are eigenvalues of the given matrix, sum of the eigenvalues is equal to, you know the properties, that is sum of the principal diagonal elements. Means lambda 1 plus lambda 2 is equal to 50 plus 80. Means value of lambda 1, see this property is used here there. So lambda 1 plus lambda 2 is equal to 50 plus 80. So lambda 1 plus lambda 2 की जगह आप लिख सकते हैं 50 plus 80. So again in these two 70 is common. 50 plus 80, आप 80 plus 50 common, 70 common लेने पर first you take this term, second you take this term, this and this get cancelled. Answer is 0. Answer is 0. So the thing is to understand the question is difficult. So maximum time is needed for this problem. To take down this question. You take down these questions, and if you have any doubts, please ask in the chat box. Ask in the chat box. प्रॉपर्टी बोलो सर एक बार और. ओके प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पर क्या है. पहले देखिए ये एक मैट्रिक्स दिया आपको, प्लीज लिसन केयरफुली, और ए के इजन वैल्यूज है लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2. लैम्डा 1 और लैम्डा 2 इजन वैल्यूज है, मतलब लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 50 प्लस 80. बात मानते हैं आप? दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी, दैट इज सम ऑफ द इजन वैल्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, दैट इज लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 50 प्लस 80. ये आप साइड में लिख लेके रखिए. उसके बाद x1 दिया आपको, x1 दिया, फिर x2 दिया, और ये मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा आपको, आप मल्टीप्लाई सिंपली करते जाओ. x1 ट्रांसपोज मतलब 70 लैम्डा 1 माइनस 50, x2 इज दिस मच. नाउ 70 इंटू लैम्डा 2 माइनस 80 प्लस लैम्डा 1 माइनस 50 इंटू 70. ये दोनों में 70 कॉमन है, आप 70 कॉमन लिए तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 आता, और एक 70 कॉमन लिए तो 80 प्लस 50 आता. यहां पर आप लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 की जगह लिख सकते 50 प्लस 80, और वही यहां पर लिखा. फिर दोनों में 70 कॉमन है, तो आप सिंप्लीफाई करो. आप चाहे तो लेंथी कैलकुलेशंस करके भी कर सकते, जस्ट टाइम वेस्ट होता आपका. दिस इज द शॉर्टेस्ट मेथड आई हैव टोल्ड. प्लीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. इसको आप नोट्स में रेड पेन से टिक कर लो, और व्हेन यू रिवाइज द थिंग्स, जो रूटीन क्वेश्चन है, रेगुलर क्वेश्चन है, उनको बार बार पढ़ते मत बैठो. जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अब तक 38 प्रॉब्लम्स हो गए इस प्रॉपर्टी पे, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन्हीं को आप सॉल्व करो. जो आपको नहीं आते और सम डिफरेंट थिंग्स आर देयर, यू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स ओनली. गॉट इट? ओके. फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन कॉल मी, फोन पे हम डिस्कस करेंगे. और आई थिंक इट इज क्लियर नाउ. नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज, all these are today's problems are very lengthy problems. मैं पढ़ते जाता हूं, थोड़ा क्लियर नहीं है, आप लिख लो. Consider a non-singular matrix. What is the non-singular matrix? Can anybody write in the chat box? I am waiting. Consider a non-singular 2 by 2 square matrix A. If trace is 4, trace means sum of the principal diagonals. If trace A is 4 and trace of A square is 5, then the determinant of the matrix A is how much? Then the determinant of the matrix A is how much? Once again I will write, consider a non, just a minute. हाँ बघायचा. Consider a non-singular 2 by 2 square matrix A. Okay, so I will go. Consider a non-singular. Non-singular क्या है, पहले आप चैट बॉक्स में लिखो, मुझे मालूम होना है. What is singular matrix? What is non-singular matrix? Consider a non-singular matrix A. उस मैट्रिक्स का ट्रेस है 4. ट्रेस मतलब उस डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करो आप, उसका 4 है,
और ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मतलब अगर से आप मैट्रिक्स को स्क्वायर करें उसका ट्रेस स्क्वायर 5 है, और तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना है आपको निकालना है। उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना है निकालना है। आप क्वेश्चन अच्छी तरह समझो, इट्स नॉट दैट मच इजी। एक नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर में आपको फिर बोलता हूं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो है जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता, जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आता। तो मतलब इसका आंसर 0 तो नहीं हो सकता कम से कम। कंसीडर अ नॉन सिंगुलर 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स ए और ए का ट्रेस 4 है और ए स्क्वायर का ट्रेस, ए स्क्वायर मतलब मैट्रिक्स को आप ए को एक बार और ट्राई करो, मल्टीप्लाई करो, तो ए स्क्वायर का ट्रेस 5 है, ए का ट्रेस 4 है, ए स्क्वायर का ट्रेस 5 है, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना है आपको ये करना है। प्लीज राइट। कोई करता क्या? आपको 2-3 मिनट टाइम देता हूं मैं, लेट मी सी इट। आप एक का इजन वैल्यू लैम्डा 1 ले लो, दूसरा लैम्डा 2 ले लो। हाँ मैं समझाता हूं, देखिए प्लीज देखो जरा, प्लीज लिटिल बिट डिफिकल्ट इज दिस। हमको क्या बोला हो, एक मैट्रिक्स है ये और उसका साइज कितना है 2x2 है, मैट्रिक्स है उसका साइज क्या है 2x2 है। मान के चलेंगे उसके इजन वैल्यूज है लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर इजन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ये। अच्छा ये क्या है ना, ये अपडेट करना है 40 मिनट्स बाद चलेगा, बाद में रीजन करेंगे बोल देंगे। ठीक है तो मालूम है उनको। लेट लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर टू इजन वैल्यूज ऑफ ए। अब ये मुझे बोलिए इजन वैल्यूज अगर से ए के लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है, ए स्क्वायर के क्या बनते हैं लैम्डा 1 स्क्वायर और लैम्डा 2 स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ पहले पता होना चाहिए। ए के इजन वैल्यूज अगर से लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है तो ए स्क्वायर के इजन वैल्यूज बनते हैं लैम्डा 1 स्क्वायर एंड लैम्डा 2 स्क्वायर। ए रेस टू 4 के बनते हैं लैम्डा 1 रेस टू लैम्डा रेस टू 4 और ए रेस टू एन के बनते लैम्डा 1 रेस टू एन लैम्डा 2 रेस टू एन। ये प्रॉपर्टी आपको पता है। तो एक बार और मैं बताता हूं, देखो ए के अगर से इजन वैल्यूज लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है तो ए स्क्वायर के बनेंगे लैम्डा 1 स्क्वायर और लैम्डा 2 स्क्वायर। तो ये मालूम होगा आपको फर्स्ट, ठीक है। ट्रेस ऑफ ये आपको 4 दिया, ट्रेस ऑफ ये 4 दिया मतलब ए के दोनों इजन वैल्यूज ऐड करो तो 4 के बराबर है और ए के इजन वैल्यूज है लैम्डा 1 और लैम्डा 2। तो पहला इक्वेशन आपको आता लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन 1। मालूम है आपको लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन 1। उसी तरह ए स्क्वायर जो है उसका ट्रेस है 5 और उसके इजन वैल्यूज है लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर और उन दोनों को ऐड करें तो 5 है, लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो ये दो इक्वेशन आपको आ गए तो प्रॉब्लम बहुत इजी है। देखिए ए का ट्रेस 4 है इसलिए उसके इजन वैल्यूज को ऐड करो, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 है, ए के इजन वैल्यूज 4 आया। ए स्क्वायर का ट्रेस 5 है उसके इजन वैल्यूज लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर है, तो उन दोनों को ऐड करो 5 आया। अच्छा इसका इजन वैल्यू लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर कैसा बना, प्रॉपर्टी से बना। तो फर्स्ट इक्वेशन इज लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 4, सेकंड इज लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर इज 5। इन दोनों को सॉल्व करना है, आपको डिटरमिनेंट निकालना है। तो इन दोनों को मैं सॉल्व करता हूं। देखिए इधर बेसिक प्रॉपर्टी आपको मालूम है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2, lambda 1 square plus lambda 2 square plus 2 lambda 1 lambda 2. But what is lambda 1 plus lambda 2? Lambda 1 plus lambda 2 is 4. So this is 4 square equal to lambda 1 square plus lambda 2 square. This is nothing but 5. It is given from equation 2. 5 plus 2 lambda 1 lambda 2. So 4 square is 16.
5 plus 2 lambda 1 lambda 2. So 16 minus 5, 11 is equal to 2 lambda 1 lambda 2. Lambda 1 lambda 2 is equal to 11 by 2. Lambda 1 into lambda 2 is 5.5. लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या? क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, लेकिन हमको प्रॉपर्टी पता है determinant of the matrix is given by product of the eigen values. So eigen values is lambda 1 lambda 2 है, उनका product 5.5 है. The answer is 5.5. The answer is 5.5. Please take down. मैं एक बार और समझाता हूँ क्वेश्चन को, थोड़ा डिफिकल्ट है. So difficulty level is increased now. Till now whatever the 30-35 problems you have solved, those were of easy types. Now the difficult questions you will get. So प्रॉपर्टी वही रहते, डेफिनेशन वही रहता, आपका नॉलेज टेस्ट करता है यहाँ पर, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं रहते. तो एक बार और क्वेश्चंस आंसर को लिख लो पूरी तरह, एक बार सोचो. आई विल गिव यू 2 minutes टाइम, देन वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन यू. और यही प्रॉब्लम मैं आपको एक और मेथड से करके बताता हूँ. प्लीज टेक डाउन. मानसी टू सर स्क्वायर क्या करना, स्क्वायर क्यों करना? ओके, स्क्वायर क्यों करना मैं आपको बताता हूं. स्क्वायर में क्यों कर रहा हूं, ठीक है, ये बेसिक. अच्छा, आपको अगर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम है तो अलग बात है. लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 4 है. लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर 5 है. अब मुझे ये दोनों इक्वेशन से लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के वैल्यूज मालूम करना. बेसिक मैथमेटिक्स. तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 अलग अलग हमको करना है, तो हम स्क्वायर करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तभी हमको लैम्डा 1 लैम्डा 2 आता. दैट इज द डिफिकल्टी. गेट में यही तो डिफिकल्टी है मानसी. गेट में पता नहीं रहता कब क्या करना है. ये मैं सॉल्व कर रहा हूं, इजी लग रहा है आपको सॉल्व करने के बाद, लेकिन ये ऐसा करना, ये आपके दिमाग में आना चाहिए. लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 4 दिया, लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर 5 दिया, हमको लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 चाहिए. तो लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 चाहिए, तो आपको ये फॉर्मूला अडॉप्ट करे तो ही आता. तो बेसिक अलजेब्रा के प्रॉपर्टीज फॉर्मूले भी आपको पता होना चाहिए गेट में. लेकिन अगर से आप 8th 9th 10th के अलजेब्रा में परफेक्ट है, एक फॉर्मूला और है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी समथिंग, वो अगर से याद करें तो डायरेक्ट कर सकते हैं आप. गॉट इट? So lambda 1 plus lambda 2 whole square. Lambda 1 plus lambda 2 whole square. Very good. और कुछ डाउट है तो पूछिए प्लीज. और कुछ डाउट है तो पूछिए, और बंद होते ही रिजॉइन कर लीजिए. ऐसा कुछ हुआ तो फिर उसी लिंक पे रिजॉइन कर लीजिए. टाइम आ रहा है बंद होने का. तो एक बार और एक्सप्लेन करता हूं. देखिए, मैं आपको अच्छी तरह समझो. ये प्रॉब्लम अब तक मैं जो प्रॉब्लम कर रहा था आपको सिंपल सिंपल आ रहे थे, आप डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जा रही है. 2 मार्क्स का प्रॉब्लम है ये. कंसीडर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स 2 by 2. पहली बात, नॉन सिंगुलर मतलब जीरो नहीं है इसका डिटरमिनेंट, इसलिए आंसर जीरो नहीं हो सकता. सेकंड थिंग, सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसका ट्रेस 4 दिया, मतलब जो मैट्रिक्स आपको दिया उसका ट्रेस 4 दिया. 4 मतलब उस मैट्रिक्स को के प्रिंसिपल डायगोनल्स को आप ऐड करेंगे तो आंसर 4 है. और ए स्क्वायर का भी ट्रेस दिया 5, और आपको पूछ रहा डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या है. और डिटरमिनेंट ऑफ द किसी मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी से कैसा मिलता, आप उसके ईजन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो, उसके ईजन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो. मतलब आपको यहां निकालना है लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2. तो हम सबसे पहले मान के चलेंगे लैम्डा 1 और लैम्डा 2 ईजन वैल्यूज है किसके, ए के. लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर है ईजन वैल्यूज किसके, ए स्क्वायर के. अब ए स्क्वायर के ईजन वैल्यूज लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर कैसा बने, तो ये प्रॉपर्टी से. तो एक बार और प्रॉपर्टी देख लीजिए. किसी भी मैट्रिक्स के, ए के मैट्रिक्स के ईजन वैल्यूज लैम्डा 1 लैम्डा 2 है, तो ए स्क्वायर अगर से मैट्रिक्स बन रहा तो उसके ईजन वैल्यू ऑटोमेटिकली बनेंगे लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर. सपोज ए रेस टू ए 8 का है, ए रेस टू 8 का ईजन वैल्यू होना है, तो लैम्डा 1 रेस टू 8 लैम्डा 2 रेस टू 8. उस प्रॉपर्टी से लैम्डा 1 लैम्डा 2 ए के ईजन वैल्यूज हो गए,
लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर ए स्क्वायर के इजन वैल्यूज। अच्छा, आपको दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में? ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए मतलब इजन वैल्यूज को ऐड करो ए के, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 4। ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर के इजन वैल्यूज है लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर, उसको ऐड करो, दिस इक्वल टू 5। सो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 4, लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब हमको इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके लैम्डा 1 लैम्डा 2 का प्रोडक्ट निकालना है, और वो प्रोडक्ट एक प्रॉपर्टी से क्या बनता? डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स बनता। ये सिंपल मेथड मैं अडॉप्ट कर रहा हूं। अच्छा मानसी, अगर से आपको ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, ये थिंग आपको समझ में नहीं आ रहा, तो सेम प्रॉब्लम आई सॉल्व्ड बाय वन मोर मेथड। वी शैल गो फॉर दैट मेथड। We shall go for now that method. Okay, now coming to the second method. Second method में क्या करेंगे? हम A को अज्यूम करेंगे। A एक मैट्रिक्स है और A के एलिमेंट्स है स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d। A एक मैट्रिक्स है, हम इसको अज्यूम करेंगे A B C D। अच्छा, व्हाट इज A स्क्वायर? A स्क्वायर मतलब फिर A को A से मल्टीप्लाई करो। So this into this, if I multiply this, you will get a into a square, b into c, bc. So a square plus bc. Like this, you will get multiply as this one. So this is a, this is a square. This is a and this is a square. ये दो मैट्रिक्स आपके पास आ गया। अच्छा, what is the given to you? What is given to you? It is given that trace of a is 4. So please rejoin. If it stops, no, please rejoin again, the same thing. So now it is given that trace of a is 4.